with your camera on so that we can address you all on the virtual windows. And whatever session will be, it will be truly inspiring, because today we have someone who is working relentlessly in a field which is very untouched in a trending careers. हमने आज तक उन करियर्स की बात ज्यादा की है जो बहुत लोकप्रिय हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं, जिनका चाल चलन बहुत ज्यादा है और आगे चल के लोगों को लगता है कि शायद इसमें हमें एक अच्छी नौकरी या अच्छा रिसर्च करने का मौका मिल सकता है और ये एक अच्छी करियर होगी। बट आज हम जिस करियर की बात करेंगे, दैट इज द करियर which is veteran, which is having an amalgamation of all the streams like science, history, civics, biology. When all the sciences comes together and they research for certain subject, that is called archaeology. Today we have Dr. Ashok Kumar Singh, associate professor from Banaras Hindu University, and I request everyone to please give a clap emoji so that we can acknowledge and welcome sir amongst our midst for this program. Sir, we welcome you for this professional visit for class 10th, 11th and 12th. Let's check out the trending careers with expert. Today we have you, Sir Dr. Ashok Kumar Singh ji is Associate Professor from Center of Advanced Study, Department of Ancient Indian History, Center Culture and Archaeology, Banaras Hindu University. So we from Sunbeam Sun City, I, Abhinav Dutt Pandey, joining hands with Sunbeam Sun City, welcome you today for this session. Thank you so much, sir, for making your time and enriching and benefit our students for this program. Dr. Ashok Kumar Singh is an associate professor at the Center of Advanced Ancient Indian History, Culture and Archaeology at BHU. He holds a PhD degree and a teaching experience of 2 decades long. Not only that, he got 30 years of field experience and leads several excavations such as Vaina, Bumadi and Pakkol in the district of Balia, Akhta in Varanasi, Haripur in Jaunpur, etc. With the permission of Archaeological Survey of India, he is the author of several books such as Uttar Pradesh ki Prachintam Nagar, etc., along with 7 dozen research papers. His lifetime member of several archaeological societies and currently working on the project Horizontal Excavation of Pre-NBPW, NBPW levels at Agai Bir in the Mirzapur district. Welcome, sir, to Sunbeam Sun City. Thank you, sir, for making your time. Although जब मेरे को इनकी प्रोफाइल मिली सर की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, क्योंकि somebody who is having worked so rigorously with this field, having 20 years of experience teaching to the fraternity, who will be the person who will be doing research in this field, this is something which is actually admiring. So thank you so much, sir. आज बच्चों को कम से कम वो चीज जानने को मिलेगी जो उनके अंदर शायद वो इंटरेस्ट पैदा करे, जिससे कि उस पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या करना चाहते हैं या आपकी फील्ड कितनी चुनौतीपूर्ण है, आगे चल के जिसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर परिचर्चा करेंगे. तो सर, आई रिक्वेस्ट Kalyani ma'am, I request Kalyani ma'am to please welcome. Kalyani ma'am is the coordinator for class 10th, and we have just ma'am from our behalf, please welcome sir. Yes. Good morning and Jai Hind, everyone. Good morning, sir. We welcome you here on Sunbeam Sun City platform, and really we are very much blessed to have you here. And now I'm very much sure that our students will come to know about the career, and you will throw light on how to approach and how to flourish their career. Thank you so much, sir. Over to Abhinav, sir. Sir, over to you. हम लोग क्या पहले आप कुछ कहना चाहेंगे, तब हमारे कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताएं. ये पहले आप एड्रेस करना चाहेंगे कि क्वेश्चन आंसर से शुरू किया जाए? वैसे मैं चाहूंगा फर्स्ट यू एड्रेस, टेल अस जर्नी अबाउट योर्स लाइक टिल नाउ एंड व्हाट हैज बीन एक्साइटिंग, कैसे रहा, कहां से शुरुआत हुई, हम ये जरूर जानना चाहेंगे. सो ओवर टू यू सर.
धन्यवाद अभिनव जी, और मैं धन्यवाद देता हूँ सन सिटी के सभी ऑफिशियल्स की और प्रिंसिपल्स की, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना कि मैं बच्चों को कुछ अपनी जो यात्रा है, अपना जो जीवन वृत्तांत है इस क्षेत्र में आने का, उसकी कुछ रूपरेखा बता सकूं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा फील्ड है आर्कियोलॉजी, जिसको हम पुरातत्व के नाम से जानते हैं, इस विषय में जाने के लिए पहले मैं ये निश्चित बता दूं आपको निश्चित रूप से कि ये इतिहास की एक ब्रांच है, हिस्ट्री की एक ब्रांच है, और ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। और इस ब्रांच में जाने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री भी क्योंकि बहुत वाइड है, इसमें जो लोग हिस्ट्री के टीचर हैं वो जानते हैं कि उन्हें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आदि पढ़ना पड़ता है। आगे जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उन्हें दूसरे देशों का इतिहास भी, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री आदि को पढ़ना पड़ता है। लेकिन पुरातत्व की जो ब्रांच है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, और इस ब्रांच में जाने के लिए बच्चों को इतिहास या हिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें अगर उनका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी की तरफ हो तो वो इस ब्रांच को हायर एजुकेशन में चुन सकते हैं। जैसे आप कोई बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए जाता है तो वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो अधिकांश यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। उस विषय को चुनता है और उस विषय को चुनने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन के लेवल पे उसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी ब्रांचेज हैं उन सभी की स्टडी कराई जाती है, क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है और इसके तमाम ब्रांचेज हैं। तो ग्रेजुएशन के लेवल पे बच्चों में ये हम देखते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो किस ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है ग्रेजुएशन के लेवल पे। जैसे मैं बताऊं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी है, एपिग्राफी है, पैलियोग्राफी है, न्यूमिस्मेटिक्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ साइंस है। इस तरह से 14 ब्रांचेज हैं जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आती हैं। तो इन 14 ब्रांचेज में बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम बच्चों को दिशा निर्देश देते हैं कि वो किस ब्रांच में जाए, और बच्चे फिर डिसाइड करते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे कि उनको किस ब्रांच में जाना है। अगर वो बच्चा मास्टर्स डिग्री करता है और उसमें उसका एडमिशन होता है और उस एडमिशन के बाद वो पर्टिकुलर वो आर्कियोलॉजी में अगर जाना चाहता है तो वो आर्कियोलॉजी का ब्रांच मास्टर्स लेवल पे वो चुनता है और आर्कियोलॉजी की ही स्टडी मास्टर लेवल पे करता है। और उसके बाद फिर वो जो है, अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो उसे पीएचडी करने के बाद फिर शिक्षा जगत में जाना होगा, और नहीं अगर वो आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में इसके और कुछ कोर्सेज हैं जो चलते हैं, जिसके आधार पर बच्चे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट या इवन म्यूजियम में जाने के लिए बाध्य होते हैं और वहाँ उनके लिए नौकरियां उपलब्ध होती हैं। तो ये तो आर्कियोलॉजी की का अपना विषय है जिसको हम ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में बच्चों को बताते हैं। तो जहां तक इस विषय का सवाल है, ये उतना पॉपुलर विषय बच्चों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट के लेवल पर नहीं है, और इसकी पॉपुलरिटी का न होने का कारण ये है क्योंकि लोगों में जागरूकता का बड़ा अभाव है, समाज में जागरूकता का बड़ा अभाव है। और अगर विदेशों की बात करें तो अमेरिका में या इंग्लैंड में, अन्य देशों में इसको एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वहाँ कोई भी लोअर लेवल पे, जैसे हमारे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के लेवल पे इस विषय को पढ़ाया जाता है, और वहाँ स्वेच्छा उस विषय को पढ़ते हैं, लोग जागरूक होते हैं, बच्चे भी जागरूक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में इसको अभी इंटरमीडिएट के लेवल पर आर्कियोलॉजी को इस सब्जेक्ट के रूप में अलग से मान्यता नहीं दी गई है, जिससे बच्चों में ये इतना ये विषय पॉपुलर नहीं है।
लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजी अपने आप में है बहुत फैसिनेटिंग। देखिए, आर्कियोलॉजी में होता क्या है, हिस्ट्री में हम सब लोग जानते हैं कि जो कुछ नोन है, जो कुछ रिटन है, उसकी हिस्ट्री हम जानते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो नहीं नोन है, विच इज अननोन टू एवरीबडी, उस पर रिसर्च करना, उस पर कार्य करना और उससे कुछ ऐसी नवीन जानकारी को का पता लगाना जिससे पूरे इतिहास के परिदृश्य को बदल दे, तो आर्कियोलॉजी का काम ये है, क्योंकि अननोन टू नो। अब इसमें भी काफी ब्रांचेज हैं, आर्कियोलॉजी में भी काफी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि विज्ञान या साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स मिल करके आर्कियोलॉजी की मदद करते हैं, और बिना इन साइंस के सब्जेक्ट्स के हम आर्कियोलॉजी नहीं कर सकते। जैसे आप सब लोग जानते हैं, आप में से बहुत से टीचर साइंस से संबंधित होंगे। बॉटनी, जूलॉजी के दो मुख्य विषय हैं विज्ञान के, लेकिन इसमें आर्क्यू बॉटनी, आर्क्यू जूलॉजी जो प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं, कैचमेंट एरिया का अध्ययन करते हैं, या इवन जो नई विधाएं हैं जिसमें हम मेराइन आर्कियोलॉजी, जो समुद्री पुरातत्व है, समुद्र के नीचे जो पुरास्थल हैं, जो ऐसे एंशिएंट साइट्स हैं जो समुद्र के अंदर डूब चुकी हैं, उनका अध्ययन करना। तो इन सब के विज्ञान की सभी शाखाओं को जोड़ करके इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, और इसमें विज्ञान की तमाम विधाओं का उपयोग हम करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं C14 डेटिंग। C14 डेटिंग के माध्यम से हम किसी भी कल्चर की क्रोनोलॉजी बनाते हैं। इसी प्रकार अब आजकल नई नई विधाएं आ गई हैं साइंस की। पैलियोबॉटनी में एक नई विधा आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं AMS डेटिंग। ये बिल्कुल रिसेंट विधा है जिसमें हम एंशिएंट ग्रेन्स के माध्यम से, जो अनाज के जले हुए दाने हैं, इन दानों के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करते हैं कि ये अनाज का जला हुआ दाना कितना पुराना है। तो आजकल AMS डेटिंग आ गई है। अगर हमें उत्खनन में या एक्सकवेशन में एक अनाज का दाना मिल जाए, तो उस एक अनाज के दाने के स्टडी से लेबोरेटरी में हमें जान सकते हैं कि ये अनाज का दाना कितना पुराना है। तो ये नई नई विधाएं आजकल पुरातत्व को बहुत मजबूती प्रदान कर रही हैं। अभी एक उदाहरण आप सब लोग बहुत नजदीक का हमारे सामने उपलब्ध है। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद काफी बड़ा विवाद था, लेकिन इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजी की मदद ली। आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर्टिकुलर प्लेस पर एक्सकर्शन करके स्ट्रेटिग्राफी के माध्यम से बताने का प्रयास किया उन्होंने कि वहां पहले जो अवशेष था वो मंदिर का था या मस्जिद का था, और उस पर डिपेंड जो रिजल्ट आए उसके आधार पर उन्होंने वहां पर टेम्पल होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। तो आर्कियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिससे बहुत नवीन साक्ष्य हमें मिलते हैं और हमेशा मिलते रहते हैं। अभी मैं वर्तमान में मैं बता दूं आपको, मैं सनबीम सनसिटी पहले भी गया हूं। वहां से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक स्थल है जिसका नाम है बभनियाव। बभनियाव, उस बभनियाव पुरा स्थल पर हमारा एक्सकर्शन कार्य चल रहा है। अभी मार्च के महीने में हमने वहां एक्सकर्शन कार्य कराया, और कोरोना के कारण वो कार्य बंद करना पड़ा। बभनियाव के एक्सकर्शन से जो रिजल्ट सामने आया बनारस में, उससे पता चला कि बनारस में जितने भी मंदिर हैं और उनकी जो प्राचीनता है, उसमें सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष बभनियाव नामक पुरा स्थल पर मौजूद है। और वहां से हमें एक शिवलिंग मिला है उत्खनन में, और ये शिवलिंग आज से लगभग 2000 साल पहले का है। और बनारस में अब तक प्राप्त जितने भी शिवलिंग हैं
उन शिवलिंग में सबसे प्राचीन है। तो इतिहास में नई नई चुनौतियां, नई नई खोजें पुरातत्व के माध्यम से हो रही हैं, और उस माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास में ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए पुरातत्व बहुत मददगार साबित होता है। जहां तक इस विषय में मेरे जाने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत ब्रीफली आपको इसमें बता दूं, हम भी विद्यार्थी थे, सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। मैं बनारस और मिर्जापुर दोनों जगहों का एक तरह से रहने वाला हूँ। वहां से पढ़ने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू में आया। बीएचयू में आने के बाद मैंने, क्योंकि मेरी रुचि एंशिएंट हिस्ट्री में थी पहले से, मैं इस विषय को पढ़ना शुरू किया। फिर इस विषय में मैंने आर्कियोलॉजी में अपने आप को, मेरी रुचि बढ़ी और इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा, और मैंने इस विषय को अपने करियर के रूप में चुना। ये सब्जेक्ट जो है अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, यद्यपि इसमें जो कार्य है वो बड़ा थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपको फील्ड में रहना पड़ता है, आपको वहां कार्य करना पड़ता है, चुनौतियां होती हैं, और आपको डेडिकेशन के साथ कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह है कि जीवन के उद्देश्यों में अगर आपने कुछ नया इनोवेशन कर दिया, जो प्राय हो जाता है, नई नई चीजें हमें मिलती हैं, उसका आप अगर अच्छे से उसको रिसर्च में समाहित कर लें, तो आप हमेशा के लिए शाश्वत हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बनारस का उदाहरण दिया, इसी प्रकार कई अन्य उदाहरण हैं जो कि इतिहास में एक नई दिशा को प्रदान करते हैं। तो मेरा इस क्षेत्र में जाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि शुरुआत से ही मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास में मेरी रुचि थी। मैं इंडियन कल्चर पर अध्ययन कर रहा था। शुरुआती समय में मैं पहले कंपटीशन में जाने के लिए इच्छुक था, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। तो मैंने फिर हायर एजुकेशन में इस विषय को चुना और उसमें अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया, और लगभग पुरातत्व के क्षेत्र में 35 सालों से कार्य कर रहा हूँ, और भारत के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र हो जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के तमाम साइट्स का पता लगाना, वहाँ पे कार्य करना, मध्य गंगा घाटी या मिडिल गंगा प्लेन में कार्य करना, और नए नए जगहों पर जाकर के उसका कार्य करना और उसमें इतिहास को समृद्ध करना, ये मेरा उद्देश्य था, जिसमें हमने इतिहास को समृद्ध करने का प्रयास किया। और कुछ हम लोग जी, और कुछ अगर आप लोग जानना चाहें, या कुछ आप अगर प्रश्न के रूप में जानना चाहते हैं तो मैं उसको बताऊं। सर कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने हमारे लिए, आपके लिए रखे थे। जी जी। कोई एक ऐसा चाइल्डहुड एकेडमिक जर्नी जो आप शेयर करना चाहें कि ये चीज कहीं आपके जहन में आई हो, मतलब नॉट इन क्लास 11th एंड 12th, कभी भी ऐसा रहा हो कि कोई चीज फैसिनेट की हो और आपने डिसाइड किया हो कि नहीं ये एक पर्टिकुलर गोल है जो हमें करना है या एक रिसर्च करनी है, एनीथिंग व्हिच इज लाइक बचपन की कुछ चीजें। जी 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 बिल्कुल। देखिए, बचपन की स्मृतियों की बात की जाए तो मेरे मन में शुरू से ही पुराने सिक्कों का संग्रह करने का एक शौक था, आप कह लें। ओके ओके। क्योंकि मैं पुराने सिक्कों का इकट्ठा करता था। अभी भी वो कलेक्शंस हैं आपके पास? मेरे पास अभी भी कलेक्शन है, और दूसरी बात यह कि अब तो मैं उसी फील्ड में ही हूँ, और सभी पुरानी चीजों को मैं कलेक्ट अपने लिए व्यक्तिगत रूप से तो नहीं करता, लेकिन यह है कि विभाग के लिए, म्यूजियम के लिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो वहाँ उपलब्ध हैं और सब प्राप्त करते रहते हैं, मिलती रहती हैं हम लोगों को। बहुत ऐसी नायाब चीजें मिलती हैं जिनका मूल्य अभी मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा आपको। तो शुरुआती समय में कहा जाए तो मेरे पिताजी बल्कि कहते थे, जब भी कोई पुराना सिक्का होता था तो मैं उसको रख लेता था और जानने का प्रयास करता था। जैसे मान लीजिए, हमारा उतना ज्ञान उस समय बचपन में नहीं था, तो विक्टोरिया का रुपया घर में था, तो मेरे मेरे दादाजी जो थे वो एक पूजा करते थे, वहां एक सिक्का रखा हुआ था। तो बाकी सिक्के तो मैं जानता था कि अंग्रेजों के समय के हैं, ये हैं। वो छेदा हुआ सिक्का होता था जिसमें छेद होता था, आपको याद होगा। हाँ हाँ, उसको रिंग कॉइन कहते थे हम। हाँ, रिंग कॉइन करते हैं, जिसको बचपन में कभी कभी उसमें बांध के हाथ में भी पहनाया जाता था। हाँ हाँ। तो वो अंग्रेजों के समय का 1940 का सिक्का है। लेकिन मेरे घर में जब पूजा होता था तो वहां एक सिक्का रखा हुआ था, तो वो सिक्का मुझे बड़ा आकर्षित करता था, क्योंकि वो सिक्का मुझे लगता था ये कैसा सिक्का है,
तो मैंने दादाजी से एक बार पूछा कि ये कैसा सिक्का है, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि हमारे बाबा या दादा ने जो है कि से भी पहले का ये सिक्का है। तो मैं समझ नहीं पाता था, तो हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या चीजें हैं जो इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें राम और लक्ष्मण का चित्र है, और इसमें जानकी बीच में बैठी हुई है, और इसकी हम लोग क्योंकि राम की पूजा करते हैं तो इसको हम जहाँ पूजा करते हैं वहां रखे हुए हैं। अच्छा, वो बिल्कुल गोल्ड का था, सोने का सिक्का था। तो मुझे बड़ा चमत्कृत करता था कि भाई ये कैसा सिक्का है और ये कब चला होगा, राम के जमाने का है या क्या है। तो वो सिक्का मुझे फैसिनेट करता रहा। और जब मैं एमए की कक्षा में पढ़ने आया और जब मैं क्वाइंस न्यूमिस्मेटिक्स को पढ़ना शुरू किया, मुद्रा शास्त्र को पढ़ना शुरू किया, तो मेरी रुचि उसी प्रकार के सिक्कों पर थी। लेकिन मैंने अपने पढ़ाई के दौरान देखा कि उस तरह के तो सिक्के ही नहीं चलते थे कभी। तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा वो सिक्का के संदर्भ में कि ये मेरे पास घर पे एक सिक्का है सर, और ये किस समय प्रचलन में रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप उस सिक्के को कब से देख रहे हैं। उन्होंने बताया बात कि बचपन से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं एमए में आया तो मुझे उत्कंठा हुई कि जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये सिक्का कब चलता था होगा। तो उन्होंने बताया कि आप ले आइएगा तो मैं उसको बताऊँ। खैर, पिताजी तैयार नहीं हुए। खैर मैं कैसे से सिक्का लाया और ले आकर उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा अशोक ये सिक्का नहीं है। तब मेरा ज्ञान बढ़ा कि ये सिक्का नहीं है कि क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये टोकन है। उस समय मंदिरों में प्रवेश के लिए इस प्रकार के टोकन दिए जाते थे लोगों को, जिससे वो प्रवेश कर सकें मंदिरों में। जिसको मुहर भी कहते थे पहले। मुहर? नहीं, मुहर दूसरी चीज है अभिनव जी। ओके। मुहर को भी बता दो मुहर क्या है। देखिए, मुहर में आपने सुना होगा सील्स और सीलिंग, अगर आपने सुना होगा। ओके। प्राय मुहर ही सुना जाता है। हाँ, हाँ। सील, हाँ। लेकिन सीलिंग आपने नहीं सुना होगा। एक होती है मुहर, एक होता है मुद्रांक। ओके। प्राय हम लोग जो यूज करते हैं वो सील का यूज करते हैं। ओके। कि प्राचीन मोहरें मिलती हैं और लोगों के पास मोहरें हैं, सोने की मोहरें होती हैं। लेकिन दो टर्मोलॉजी है, एक सील है, एक सीलिंग है। ओके। प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे आज भी हम सील लगाते हैं, आपकी अपनी सील है, प्रिंसिपल की सील है। सील में क्या होता था कि सील में जो कुछ भी लिखा होता था वो उल्टा लिखा होता था। आपने देखा होगा, अगर सील को ध्यान से देखें तो सील पर जो भी इंस्क्रिप्शन है वो उल्टा है। जब उसको आप लगाते हैं तब वो सीधा हो जाता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है। सीलिंग वो चीज है जो कि मुद्रांक है, अर्थात जिस पर लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड सीलिंग। जैसे आप कोई पार्सल कहीं भेजते हैं तो उसको सील करते हैं। आपने कोई एक सील लिया, उस पर लगा दिया। आपने लाख लिया, लाख लगाने के बाद उस पर सील लगा दिया ताकि आपकी मोहर उस पर लग गई। उसका तात्पर्य यह है कि कोई उसको खोल ना पाए, ताकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। तो जो उस पर लगता है दैट इज कॉल्ड सीलिंग। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था, चीजें भेजी जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी व्यापार के सिलसिले में, तो उस पर वो सील या मुहर लगा दी जाती थी और उस पर इंप्रेशन आ जाता था। जैसे मान लीजिए मैं AK सिंह कोई पैकेट कहीं बाहर भेज रहा हूँ तो उस पर अपने मुहर लगा दिया, और जब आपके पास पहुंचे तो आपको सुरक्षित हालत में मिले कि हाँ बिल्कुल ठीक है और इसमें। तो ये सील और सीलिंग है। अच्छा, जो मोहरें होती थी, लोगों को ये पता है कि मोहरें केवल सोने की होती थी। प्राचीन काल में मोहरें मिट्टी की होती थी, हाथी दांत की होती थी। सोने की मोहरें तो बहुत बाद में बनना शुरू हुई। पहले मिट्टी की मोहर होती थी जो पक्की मिट्टी की थी, और उस पर एक इंस्क्रिप्शन होता था उल्टा, और वो सील किया जाता था, फिर उस पर लगाया जाता था। दूसरा है कि नदियों के रास्ते व्यापार होता था। व्यापारी, जिसको हम सार्थवाह कहते हैं, सार्थ मतलब व्यापारियों का जो मुखिया होता तो सार्थ कहा जाता था। ये सार्थवाह जब कारमा के साथ चलते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को लेकर के, तो उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। अलग अलग टेरिटरी होती थी, अलग अलग किंग होते थे। तो उस राजा के राज्य से जब वो गुजरते थे तो वहां एक मुखिया होता था, उनका राजा का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो वहां एक वो सील लगाता था और फिर वो सुरक्षा देता था कि उसके राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वो सुरक्षा देता था। फिर वो उस राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते थे। तो ये सील और सीलिंग का मतलब। हाँ, और बताइए जी। तो सर ये तो रही बात बचपन की, और इसमें आपने बताया कि दैट सिक्का हैज फैसिनेटेड यू सो मच टू नो मोर अबाउट इट। ओके, मुझे ये बताइए सर, आप इतने सारे एक्सकवेशंस में गए, एक बहुत सारा
आपको एडवेंचर भी रहा होगा, थ्रिल भी बहुत रहा होगा, चैलेंजिंग भी रहा होगा, कोई ऐसा जो कि बहुत याद भी हो, चैलेंजिंग भी रहा हो, और लगा हो कि नहीं अब हम लोग बहुत ही करीब हैं, बट तभी भी आई जस्ट वांटेड टू नो व्हिच वाज वन ऑफ द एडवेंचरस साइट फॉर यू, जिसपे आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा हो, चैलेंजिंग भी लगा हो, ऐसी कौन सी साइट रही है? देखिए, ऐसा है कि हमने करीब 15 ऐसे साइट हैं जिनका उसक्रिप्शन किया है, डायरेक्शन दिया है, लेकिन 2 इंस्टांस जीवन में ऐसे हुए जिसने मुझे सोचने को मजबूर किया। पहला इंस्टांस जो था वो मेरे जीवन के पहले साल का था, जब मैं पहले साल ट्रेनिंग में था। एक्सकेवेशन का कार्य चल रहा था गोरखपुर जिले में। ये घटना है 1985 की, मतलब आज से करीब 35 साल पहले। और हम यंग स्कॉलर थे, पीएचडी में कर रहा था उस समय, और साइट पर मैं डिप्यूटेड था वहां काम करने के लिए। हमारे जो सीनियर डायरेक्टर थे वो बराबर वहां उपस्थित रहते थे, हम लोगों को सिखाते थे, बताते थे। एक दिन ऐसा वाकया हुआ अभिनव जी या कि वो अनुपस्थित थे, मतलब वहां एब्सेंट थे उस दिन। वो बनारस आए हुए थे कुछ मीटिंग की वजह से, और हम सभी जितने यंग स्कॉलर्स थे वो अकेले थे, मतलब वहां पर हम लोग। और ऐसा समय प्राय बहुत कम आता था, क्योंकि 2 से 3 महीने हम फील्ड में होते थे, और इस 2 से 3 महीने में पहला ऐसा अवसर था जब हम लोग, हमारे यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं था, मतलब हमारे प्रोफेसर बाहर थे, और हम सब लोग बहुत निश्चिंत थे, उन्मुक्त थे और स्वच्छंद थे। तो हमको ये बताया गया था कि आप 2 दिन कोई कार्य नहीं करेंगे, और जो भी चीजें निकली उसके साफ सफाई करेंगे, उसकी एक्सेशन करेंगे, उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, नोट बनाएंगे, ताकि हम लोग आएंगे तो आपसे बात करेंगे। हम लोग को दिन भर यही काम था। वहां वहां जो है घाघरा नदी थी, हम लोग नदी में स्नान करने जाते थे। शाम का वाकया था, हम लोग नदी में स्नान करने गए थे। तो स्नान करने के पहले हम लोग नदी के किनारे घूम रहे थे, और वहां से जो पुरानी चीजें थे उसको कलेक्ट कर रहे थे अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए। तो नदी के किनारे जो सेक्शन कटा हुआ था उसमें हम लोग पुराने मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन थे जो बहुत ही चमकीले होते हैं। कभी मैं आपको मौका मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा रूबरू आकर के वो बर्तनों को। वो इतने चमकीले होते थे कि वो मतलब उनको पर्सनल कलेक्शन में हम लोग रखते थे। बहुत ही सुंदर लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और वो आज से 2500 साल पहले के मिट्टी के बर्तन, 2500 साल, मतलब गौतम बुद्ध के जमाने के। और वो ऐसे मिट्टी के बर्तन थे जिस समय समाज का एक विशेष वर्ग उस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। मतलब वो आम आदमी के बर्तन थे ही नहीं, राजाओं के, एलिट क्लास के लोगों के बर्तन थे। क्योंकि समाज में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था उसमें अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो राजाओं के लिए और एलिट क्लास के लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। इतने फैसिनेटिंग थे वो, इतने सुंदर और इतने चमकीले होते थे, इतने कलरफुल होते थे कि उनको हम लोग नदी के किनारे से सेक्शन से निकाल निकाल के और पॉलिथीन में रख के पर्सनल कलेक्शन के लिए रखते थे। वो गोल्डन कलर के होते थे, वो सिल्वरी होते थे, वो पिंक होते थे, और वो आपको बता दें कि 1200 डिग्री टेम्परेचर में पकाए गए होते थे। उसमें मेटलिक साउंड होते थे। अगर उसको आप ऐसे जमीन पर गिराएं, मतलब किसी हार्ड सरफेस पे गिराएं, तो उसमें आता था, मेटलिक साउंड आती थी, लगता था विक्टोरिया का रुपया गिरा। और कुछ इतने चमकीले होते थे कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे, शीशे जैसे, मिरर इफेक्ट। तो वो बड़ा हम लोगों को आकर्षित करता था। वो मिट्टी के बर्तन हम इकट्ठा कर रहे थे। हमारे एक मित्र थे जो हमारे सहयोगी थे उस समय, वो दूसरे दिशा में इकट्ठा कर रहे थे मिट्टी के बर्तन, मैं दूसरे दिशा में था। उनको वहां एक कटोरा दिखाई पड़ा, बाउल। तो उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। जब निकाला तो उन्होंने देखा कि वो कटोरा जो है, 2 कटोरे हैं, एक बड़ा कटोरा, एक छोटा कटोरा। छोटा बाउल, बड़ा बाउल। जो बड़ा बाउल था उसके मुंह, दोनों के मुंह घुसे हुए थे। बड़े बड़े बाउल के भीतर छोटे बाउल का मुंह ऐसे घुसा हुआ था। दोनों का जो है बेस दिखाई पड़ रहा था। जब उन्होंने निकाला उसको पूरा कंप्लीट कटोरा, तो उन्होंने बहुत तेज आवाज दी, अरे अशोक जी आइए आइए, यार देखिए ये कैसा बर्तन मिल गया। अच्छा, वो बर्तन वही था जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसको हम लोग चमकीले मिट्टी के बर्तन कहते हैं। वो कंप्लीट 2 कटोरे आपस में जुड़े हुए मुंह से मिले। तो मैं भी भागा हुआ आया,
क्योंकि कंप्लीट था, इसलिए हम लोग को बहुत हैरत हुई देख करके। फिर उसको हम लोगों ने हाथ में लेकर के, मैंने हाथ में लिया, क्योंकि मैं उनसे उसमें उन लोगों में सबसे सीनियर था। तो उन्होंने कहा यार ये देखिए क्या है। मैंने जब हाथ में लिया तो पहला मेरा दिमाग गया कि ये इतना वजनी क्यों है, क्योंकि वो जो कटोरे थे बहुत लाइट वेट होते थे, इतने लाइट वेट होते थे कि हवा में उड़ जाए, इतने थिन कोर के होते थे। तो मैंने कहा इतने थिन कोर का कटोरा दो, ये इतना वजनी क्यों है। हमने कहा इसमें मिट्टी घुसी होगी इसलिए कोई वजनी है, लेकिन इसका मुंह तो बंद है, इसमें कैसे मिट्टी जा सकती है। फिर हम लोगों ने खींचने का प्रयास किया, तुरंत उत्सुकता बढ़ी कि देखें क्या है, वो खुला नहीं। उसके बाद हम लोग घर पे आए और कैंप में, हमारा कैंप था, टेंट लगा हुआ था, उसमें हम लोगों ने बाल्टी में पानी रखा और उस पानी में उस दोनों कटोरों को डाल दिया। जब वो नरम हुआ तो फिर हमने कटोरों को निकाला, ऐसे निकल गए कटोरे। उसके भीतर से एक मिनिएचर वेसल, इतना छोटा, मिट्टी का ही एक मिनिएचर वेसल निकला, और उस मिनिएचर वेसल के अंदर 50 क्वाइन थे, 50 सिक्के थे। और जब वो 50 सिक्के उसमें से निकले, बाल्टी में गिरे, तो खन खन आवाज किया। हम लोगों ने देखा कि सिक्के हैं। हम लोग हैरत में कि खेलते खेलते हम लोग 50 सिक्के पा लिए। अकस्मात ताज्जुब होगा कि हम लोग को खुदाई में एक भी सिक्का नहीं मिला था उस खनन, और इस खेल में वो 50 सिक्के निकल गए। खैर, गांव में हल्ला मच गया कि सोने के सिक्के मिले। गांव के लोग टूट पड़े देखने के लिए, कहां सोने के सिक्के हैं। हम लोग चकराए, अब गांव वालों को कुछ कह भी नहीं सकते, दिखाया हम लोगों। तो उन्होंने देखा तो उनका, अरे ये तो ऐसे ही है, तो जस्ता के सिक्के। अच्छा, वो कोरोडेड थे, ऊपर से काफी उसमें कोरोजन लगा हुआ था। फिर वो गांव ने कहा कि नहीं सोने के नहीं है, तो ऐसे जस्ता उस्ता के सिक्के हैं, अंग्रेजों के जमाने के होंगे। वो चले गए, खैर उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने, क्योंकि मैं सबसे उसमें पढ़ा लिखा था, पीएचडी कर रहा था, मैंने क्वाइंस के विषय में पढ़ा था। मैंने कहा कि भाई ये सिक्के बहुत पुराने सिक्के, क्योंकि हम लोगों ने एमए किया था, पढ़ा था, सिक्कों पर काफी अध्ययन किया था। तो हमने कहा कि देखिए ये भारत के जो सिक्के हैं, जो सबसे प्राचीन सिक्के कहे जाते हैं, जिनको हम लोग पंच मार्क्ड क्वाइन कहते हैं, आप लोग भी पंच मार्क्ड क्वाइन, ये गौतम बुद्ध के जमाने के सिक्के हैं, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, जो 2500 साल पुराने हैं। ये वो सिक्के थे। बाद में जब प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने देखा तो वो उछल गए। उन्होंने कहा कि ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप लोगों को खेल खेल में मिल गई है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1986 में इंग्लैंड के साउथहम्पटन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वर्ल्ड न्यूमिस्मेटिक्स कांग्रेस। उसमें प्रोफेसर साहब गए और उन्होंने वहां इन सिक्कों की स्लाइड प्रोजेक्ट की, जो 50 सिक्के थे, और उन्होंने दिखाया। वहां लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित हुए लोग कि इतने पुराने सिक्के। और वहां कुछ क्वाइन डीलर थे, जो सब जगह होते हैं, क्वाइन कलेक्टर और क्वाइन डीलर। उन्होंने उसी प्रकार के 3-4 सिक्के उनके पास थे, जो उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम को बेचने के लिए आए वो। और पता चला कि वो सिक्के उस समय 1986 में पर क्वाइन 3000 पाउंड पर क्वाइन बेचा। आप कल्पना कर लीजिए कि 3000 पर क्वाइन वो सिक्का, वहां 3 सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया। और ये 50 सिक्के हम लोगों ने खेल खेल में प्राप्त किए थे, जो आज हमारे म्यूजियम में, भारत कला भवन म्यूजियम के स्टोर रूम में रखे हुए हैं, जो हमको लगता है कि आज की तारीख में 100 करोड़ से कम उसकी कीमत नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी अकस्मात ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये चीजें मैं बराबर बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि कितना फैसिनेटिंग होता है जब आप इस तरह की चीजें कभी पा जाएं जो अमूल्य हो। बाद में पता चला कि जब महाजनपद काल था और काशी कौशल जनपद था, तो ये दोनों जनपदों ने संयुक्त रूप से ये क्वाइन जारी किए थे। और वो क्वाइन किसी व्यक्ति के हाथ में लगे, उन्होंने उसको तुरंत उसको दफन कर दिया, दफना दिया, रख दिया भविष्य के लिए, और वो सुरक्षित रह गया। और 2500 साल बाद खेलते खेलते हम लोगों के हाथ लगे। तो ये घटना इसलिए फैसिनेटिंग है कि इसे सर, इसे खेलते खेलते उपलब्धि नहीं कहेंगे, इसे खेलते खेलते जैकपॉट लग गया था आपको, जो कि जैकपॉट लग गया। हाँ, और उसने इतना नाम और मेरे ख्याल से कम अगर आज की डेट में अगर वो प्योर सोने के सिक्के होंगे तो
उसकी कॉस्ट अराउंड करीब करीब नहीं 40 वो लाख पहली रुपए रहेगी। अभिनव जी, पहली बात वो सोने के नहीं है, अच्छा, वो चांदी के सिक्के हैं। हाँ और भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो चांदी के हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसपे चांदी के जो पंचमार्क कॉइन है वो चांदी के हैं, सबसे प्राचीन सिक्के जो गौतम बुद्ध के जमाने के हैं। लेकिन उसका मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चांदी की कोई माइन नहीं थी। आखिर ये कहाँ से आए होंगे, तो पता चला राजस्थान के माइन से वो निकाले गए हैं और फिर बाद में सिक्के के रूप में बनाया गया। और जब उसका हम लोगों ने मेटलोग्राफी की स्टडी करवाया तो पता चला कि उसके अंदर मिनरल में 0.01% गोल्ड है, और राजस्थान के माइंस में ही 0.01% गोल्ड होता है। तो ये तमाम आगे फिर रिसर्च हुआ और उसकी हिस्ट्री बाप रे। हुई और उस पर चीजें लिखी गई। सर, बच्चों का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इस समय रेलिवेंट है इस परिस्थिति के हिसाब से। एक जी, बच्चे ने पूछा है कि आर्कियोलॉजी का इंडियन जॉब मार्केट में क्या प्रोस्पेक्ट है और इंटरनेशनली क्या प्रोस्पेक्ट है, जी। क्योंकि अल्टीमेटली एक बच्चा हाँ, जो है वो यही चाहेगा कि हम अल्टीमेटली इसका गोल क्या होगा और इसकी कितनी जी, जी। डिमांड है। देखिए, आर्कियोलॉजी का जो डिमांड की बात है, जहां तक भारतवर्ष में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। विदेशों में तो बहुत ज्यादा डिमांड है, विदेश के तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि विदेश में ये जो है स्कूल लेवल पर ही नहीं, उसमें जो चाहे वो पढ़ सकता है, इस सबके लिए ओपन रखा हुआ है। और उनके यहाँ तमाम पब्लिक सेक्टर और तमाम अ, ऐसे लोग हैं जो कि मदद करते हैं आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। जहां तक इंडिया की बात है, भारत में इसको पढ़ने के बाद लड़के दो फील्ड में जा सकते हैं। एक तो हायर एजुकेशन में टीचिंग का एक जॉब तो है ही है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, वो एमए करने के बाद अपने को स्विच ओवर कर सकते हैं। वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक कोर्स होता है जिसको डिप्लोमा कोर्स इन आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये 2 इयर्स कोर्स है। इस 2 इयर्स कोर्स को करने के बाद बच्चों के लिए जॉब के बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा कोर्स इन आर्कियोलॉजी होता है। उसके बाद बच्चे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की नौकरी के लिए जाते हैं। और भारतवर्ष में तमाम असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट जो भारत सरकार द्वारा, भारत में तमाम ब्रांचेज हैं, तमाम सर्किल्स हैं, पूरे भारतवर्ष को तमाम सर्किल्स में बांटा गया है और वहाँ तमाम असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो उसमें उनको जॉब मिलता है। जो बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं वो बच्चे म्यूजियम्स में जाते हैं, संग्रहालयों में जाते हैं, वहाँ क्यूरेटर बनते हैं, क्योंकि वहाँ तमाम जो एंटिक्विटी निकलती हैं उनके रख रखाव, उनके डिस्प्ले करने के लिए उनको काम मिलता है। तो आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जाने पर 3 फील्ड विद्यार्थियों के लिए खुल जाती है। एक है जो हायर एजुकेशन में जाना टीचिंग के लिए, दूसरी फील्ड है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में, जिसमें आगे चल के वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर जनरल तक जाते हैं वो प्रमोट करके। और दूसरा जो पक्ष है वो है म्यूजियम में, जिसमें क्यूरेटोरियल जॉब मिलती है उनको, और क्यूरेटर से फिर वो डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल तक जाते हैं। तो ये 3 ब्रांचेज हैं जो आर्कियोलॉजी से जुड़ी हैं। और इसमें साइंस ब्रांच के बच्चे आते हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज ब्रांच के बच्चे आते हैं, और ये बहुत ही बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन लास्ट का लेंगे हम लोग, जो कि है कि if not an archaeology, what are the other alternative options that students have to have this profession? अगर मैं फुल टाइम नहीं रिसर्च करना चाहता या इसका पार्ट बनना चाहता हूं, तो what will be an alternative for a child to be? देखिए, अगर आप आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, हम लोगों ने क्या किया, अब जैसे बीएचयू में है और कई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नया शुरू किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, उन्होंने इसको वोकेशनल कोर्स से जोड़ा है। वोकेशनल कोर्स जिसमें हम लोग आर्कियोलॉजी के साथ म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, मतलब म्यूजियम और आर्कियोलॉजी दोनों को साथ जोड़ा हुआ है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चे इस क्षेत्र में हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, वो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद उनके पास ऑप्शन और खुल जाता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो करना चाहे वो करें। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करना चाहते हैं वो आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना फील्ड चेंज करके चाहे तो केवल म्यूजियोलॉजी के फील्ड में जाए, क्योंकि म्यूजियोलॉजी में भी एमए इन म्यूजियोलॉजी होता है, एमए इन आर्कियोलॉजी होता है। तो उनके लिए भी रास्ता है कि जो लोग ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो कंपटीशन में जा सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं आपको, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसके साथ 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। जब आप नेट या जीआरएफ के लिए जाते हैं, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं,
तो उनके लिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इंडियन कल्चर है और एक सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी सेपरेट है। तो नेट के लिए, हायर एजुकेशन में नेट और जीआरएफ के लिए जाने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 3 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट कल्चर और आर्कियोलॉजी तीनों सेपरेट में अलग अलग चाहे तो जिस क्षेत्र में भी चाहे वो नेट के लिए और जीआरएफ के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हमारे सारे 96, आई थिंक ये रूम 100 का है और आपको इस समय करीब करीब 96 लोग सुन रहे हैं, उसमें जी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जो क्लास 10, 11, 12 के लिए हैं। सो उनके लिए इस पैंडेमिक में आपकी तरफ से मैसेज और प्लस आगे चल के हम इसको कैसे परस्यू कर सकते हैं, कैसे पैशन फॉलो कर सकते हैं, द लास्ट पीस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम योर साइड सर। देखिए हम लोग, ऐसा है कि जब भी कोई समय आता है, जैसा भी समय हो, ये पैंडेमिक का समय तो ऐसा है जो हमारे लिए बहुत चुनौतियों वाला समय है और इसने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ रहे हैं सबसे। बच्चों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको उस चुनौती को स्वीकार करना है और उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं और निराश तो कभी नहीं होना। जीवन में अगर निराश हो गए तो आपने सब कुछ खो दिया। निराश आपको कभी नहीं होना है, हमेशा आपको पॉजिटिव होकर जीना है। और मेरा बच्चों से और सभी जो गार्जियंस हैं और बाकी सब लोगों से आग्रह होगा कि बच्चों में, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है, हम तो हायर एजुकेशन में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन असली जो कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उस लेवल तक ले आने के लिए जो कार्य आपका है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों के प्रति श्रद्धावनत हूँ कि आप लोग उन पुष्प को और पौधों को तैयार करते हैं जिनको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं हर बच्चे में एक नई ऊर्जा देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि हर बच्चे के अंदर अपनी खूबियां हैं, उनके अंदर अपनी क्वालिटीज हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम उनको हमेशा जीवंत रखें और उनके रुचि के हिसाब से उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं गार्जियंस को, माँ बाप को, अध्यापकों को इस बात को बताना चाहूंगा कि बच्चों में ये प्रेरणा पैदा करें, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिक शिक्षा दे रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं, तो आप हर बच्चे की क्वालिटीज को खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। किस बच्चे में कौन सी क्वालिटी है, उनके गार्जियन को आप इस बात के लिए तैयार करें कि आप उन बच्चों को उन्हीं के क्षेत्र में भेजें जिस क्षेत्र में वो रुचि रख रहा है, जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है। मैं बताऊं आपको, अगर 2 मिनट समय है आपके पास अमनो जी, 2 मिनट समय है? बिल्कुल सर, है बिल्कुल। हाँ, मैं ये बताऊं आपको कि देखिए मेरे परिवार में, आप सब जानते हैं, मेरे बेटे को तो पढ़ाया है अमनो जी ने, सब लोग जानते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी जब मेरी पढ़ रही थी तो मैं तो अध्यापक हूं, तो मैं देखता हूं कि बच्चों में क्या रुचि है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उसकी पेंटिंग में बहुत रुचि थी। इंटरमीडिएट में जब वो पढ़ रही थी तो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती थी। पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मीडियाकर ही थी। जब रिजल्ट आया तो सारे पेपर्स में नंबर उसके अच्छे थे, लेकिन पेंटिंग में 99 था। तो मैंने कहा कि भाई इसकी पेंटिंग में इतनी रुचि है। उसने कहा कि हमें पूछा, पापा क्या करोगे बेटा? तो कहे पापा मैं पेंटिंग में बीएफए करना चाहता हूँ बीएचयू से। हमने उसको कहा ठीक है, उसने एडमिशन दिया, एडमिशन हो गया उसका। उसके बाद एमएफए किया उसने। आज वो स्कूल टीचर है इंदौर में और बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत अच्छी कविता लिखती है, बहुत अच्छा वो जो है लेख लिखती है। अब अगर मैं कहता कि तुम इंजीनियरिंग करो, तुम डॉक्टर के क्षेत्र में जाओ, डॉक्टर बनो, तो हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए तो बच्चे ज्यादा अच्छा करेंगे और बच्चों पर गार्जियन का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जो हम भी गार्जियन हैं तो महसूस करते हैं कि बच्चे इतना पढ़ो, ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम थोड़ा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, सब करो। देखिए बच्चों में संस्कार जो महत्वपूर्ण चीज है वो पैदा होना जरूरी है। और ये संस्कार कहाँ से आता है? समाज से आता है, अध्यापकों से आता है, परिवेश से आता है, आप जैसे शिक्षकों से आता है। और आप उनको आगे बढ़ाते हैं और फिर उनको हम आगे चल करके उनको उनके दिशा में प्रेरित करते हैं। तो मेरा यही कहना है इस पैंडेमिक में कि बच्चे निराश ना हो, बच्चे
जीवंत बने रहें और जीवन को जो भी चुनौती हो अच्छे से स्वीकार करें। उनके लिए राहें आसान है। देखिए चुनौतियाँ तो है, मेहनत तो है, और जब फील्ड है तो जिस फील्ड में भी जाएँगे वहाँ कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। ईश्वर सबकी मदद करता है, सफलता मिले। और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें समय दिया, सुना, और मेरी जो कुछ भी चीज़ें थी जो मैंने बताया, उससे अगर कुछ लाभ मिला होगा, मैं अपने आप को बहुत अनुग्रहित समझूँगा। थैंक यू सो मच सर। आपके एक-एक शब्द एक कहानी की तरह थे, और स्टोरी सुनना किसको पसंद नहीं होता। दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज having itself a prefix of story. So this is something which was very mesmerizing. अच्छा लगा ये सुन के कि कितने सहज भाव से चीजें आप अगर अपने लाइफ में एक एम बनाते हो, और हमको आप ये सोचते हो कि ये चीज कितनी ज्यादा यूनिक हो सकती है, something which you have told us today. And it was really nice to listen कि ये आर्कियोलॉजी एक एंशियंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, एक इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है, एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं है. इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दी मेटलर्जी, केमिकल्स, फिजियोलॉजी, psychology, sociology, and so many things coming to at one place. And this department is so rich that somebody who is really aspired to be a archaeologist can go with this. और ये तभी हो सकता है जब बच्चे बहुत पैशन हो उनको चीजें जानने के लिए. इट इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, knowing about new things, and very very well researched about that. So thank you so much sir for giving your precious time. I know आपका लेक्चर टाइम था ये, बट आपने मैनेज किया हमारे लिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है. नहीं, मैंने अपने क्लास को पोस्टपोन कर दिया था कि भाई जैसे भी आप जहाँ भी रखें उस हिसाब से मैं ले लूंगा बच्चों को. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और मेरे ख्याल से आपने ऐश्वर्य का जिक्र किया. बच्चे जो हैं वो हो सकता है शायद बच्चे हमें भूल जाएं, लेकिन बच्चों को हम नहीं भूलते. ऐश्वर्य का बैच, उसके साथ तनु, प्रीति, ये सारे जितने बच्चे थे वो आज भी दिल के उतने ही करीब हैं, क्योंकि इनको हमें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द काइंड ऑफ रेपो दे बिल्ट. एंड एट दैट टाइम सनबीम सनसिटी को जिन बच्चों ने एक मार्क दिया, एक ब्रांड बनाया अपने रिजल्ट से, अपने एटीट्यूड से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने प्लेटफॉर्म शेयरिंग से, अपना हर जगह उन्होंने जो भी एड्रेस किया या रिप्रेजेंट किया सनबीम सनसिटी को, they have left the mark for others who are right now. And children who are listening to me right now on this forum, it was a batch which has truly believed in actions and also shining them, polishing themselves into academics also. तो ये academic plus activities वाला बैच था, जिसको I think मेरे ख्याल से कोई भी पुराना व्यक्ति जो यहाँ पे उन्हें जानता हो नहीं भूल सकता. So thank you so much sir. अभी उसका एक अभिनव जी, अभी उसका एक लेख जो है अमेरिकन यूएसए डाइजेस्ट में छपा है, इंडो रशियन रिलेशंस पे, मैं आपको भेजूंगा, पढ़िएगा. ठीक है, बहुत ही. ओके, थैंक यू सो मच सर. कल्याणी मैम, वोट ऑफ थैंक्स. या शब्द नहीं है सर आपको सुनने के बाद. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आपके विभाग से ही होकर मैं गुजरती थी सोशल साइंस फैकल्टी में जाने के लिए. तो आफ्टर लॉन्ग इयर्स मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, एक रिनाउंड पर्सनालिटी को सुन रही हूँ, और हमारे बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा. आपने जो इस क्षेत्र के बारे में बच्चों को बताया है वो निश्चित बहुत 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 बच्चों को लाभान्वित करेगा, और आशा है भविष्य में भी आप ऐसे ही अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे और बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे. और जैसा कि अभिनव सर ने कहा, ऐश्वर्य, तनु, इनके बैच को सैल्यूट, और चाहेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ऐसे ही निकले. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. Thank you. So let's meet again for the next session quickly, and thank you so much. And I'm ending this session. Thanks. I'm signing out now. Thank you.